myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic binomial heap. This lecture is in continuation to the previous lecture from the subject Design and Analysis of Algorithm. In the previous lecture I have discussed about what is a binomial tree, what are the properties of the binomial tree, what is a binomial heap and its properties, as well as I have discussed about the few operations. The first operation was the creating a empty binomial heap. For creation of an empty binomial heap, the time complexity will be constant because we are doing the memory allocation in that. Next operation which we have discussed in the previous lecture is the finding the minimum key in a binomial heap. For finding the minimum key in a binomial heap, we have to traverse the root list only, because binomial heap is basically a collection of binomial trees, and the first property of a binomial heap is that it should obey the min heap property. So, in order to obey a min heap property, the parent node should always be less than the child node in a min heap property. So, we can simply say that for finding the minimum node, we have to traverse the root list only. For traversing the root list, we do not have to traverse the n nodes, we have to traverse only the log n plus 1 binomial trees. As we have been said that if there are n nodes in a binomial heap, then there are at most log n plus 1 binomial trees. That there are at most log n plus 1 binomial tree, then we have to traverse only the log n plus 1 roots. So, if we are traversing the log n plus 1 elements, then the complexity will be log n. Next is the union of two binomial heap. For performing the union of two binomial heaps, in the case of a binary heap, it will be taking a time of a n, that is a linear time. But in the case of a binomial heap, if we merge the two heap together, now what will happen if we merge the two heap together, then we have to go through the number of nodes less than n. So, we have to go through the number of nodes less than n, that is the root nodes. That is root nodes को अगर हम देखें तो सिंपल log n plus 1 binomial trees होंगे h1 के और log n plus 1 binomial trees होंगे h2 के. Log n plus 1 plus log n plus 1 will be what? Twice of log n plus 2. Twice of log n will be what? Log n. So, the complexity for performing the union of two binomial heap will also be log n. Now, what were the parameters on which we are performing the union of two binomial? There were 4 cases which I have discussed. First is if the degree of x is not equal to degree of next of x, then move the pointers ahead. Second is what? If the degree of x is equal to degree of next of x is equal to degree of sibling of next of x, then also move the pointers ahead. Now, the third case is if the degree of x is equal to degree of next of x is not equal to degree of sibling of next of x. तो हम थर्ड और फोर्थ केस में क्या करते थे? x और next of x की की देखते थे, जिसकी की बड़ी होती थी उसको छोटे वाले की का लेफ्ट चाइल्ड बना देते थे. This is the approach which we are performing in the union operation. Now, I will discuss about the other operations in this lecture. First operation after performing union is inserting a node. Now, what is inserting a node in a binomial heap? Now, in a binary heap we simply insert a node. In a binomial heap, how can we insert a node? There is no property of inserting a node directly. In a binary heap we can insert a node directly, but in a binomial heap there is no process of that. If we insert a node directly, then it will violate the property of the binomial trees containing 2 की power k nodes. So, जैसे कि सिंपल अगर बात करें, binomial heap में हम कोई भी नोड ऐसे ही इंसर्ट कर सकते थे. लास्ट पोजीशन पे 9 नोड्स हैं, 10वीं पोजीशन पे जाकर लास्ट नोड को इंसर्ट कर दिया. उसके बाद जो वायलेशन आया मैक्स हीप मिन हीप का, वो हमने फॉलो किया. लेकिन बाइनोमियल हीप में हम नोड ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते. अगर नोड ऐसे इंसर्ट कर देंगे तो 2 की पावर k नोड्स वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी. तो हमें क्या करना होगा, जब भी कोई नोड इंसर्ट करनी है तो उसका नया हीप बनाएंगे, उस हीप का और पुराने हीप का दोनों का यूनियन परफॉर्म कर देंगे, उसके बाद वो इंसर्शन हो जाएगा. नेक्स्ट ऑपरेशन इज एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम नोड फ्रॉम अ बाइनोमियल हीप. मतलब क्या कि कोई भी एक बाइनोमियल हीप है, उसमें से मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करना है. अब देखो इसके अंदर क्या 2 काम हो रहे होंगे. एक तो पहले तो मिनिमम आइडेंटिफाई करो. मिनिमम आइडेंटिफिकेशन के एल्गोरिथम हम पहले ही पढ़ चुके हैं. और जब मिनिमम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लो. एक्सट्रैक्ट कर लो मतलब रिमूव कर दो वहां से. और जब रिमूव करोगे तो उसके बाद क्या चेंजेस हीप में आएंगे, कैसे उसमें आगे जाके यूनियन परफॉर्म होगा, उसे हम देखेंगे अभी. नेक्स्ट, डिक्रीजिंग द की वैल्यू. डिक्रीजिंग द की वैल्यू क्या? मेरे पास कोई बाइनोमियल हीप है, मैं किसी भी नोड की वैल्यू को डिक्रीज कर दे रहा हूं. किसी भी नोड की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो मेरी मिन हीप वाली प्रॉपर्टी वायलेट होगी उस पर्टिकुलर बाइनोमियल ट्री के अंदर.
सो मिन हीप वाली प्रॉपर्टी वायलेट होगी तो हमेशा क्या हो रहा होगा, वो नोड अपने पेरेंट से, पेरेंट अपने ग्रैंड पेरेंट से हमेशा कंपेयर होता हुआ चले जाएगा जब तक वो वायलेशन रुके ना। नेक्स्ट इज द डिलीटिंग द नोड। डिलीटिंग द नोड मतलब कोई भी बाइनोमियल हीप है उसमें से कोई भी नोड डिलीट कर दो। सिंपली डिलीट तो नहीं कर सकते, बाइनरी हीप में हम सिंपली डिलीट कर सकते थे, यहां पे डिलीट करेंगे तो क्या होगा, वायलेशन आ जाएगा 2 की पावर k नोड्स का। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हम उसे सबसे छोटी वैल्यू असाइन करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू थी -इन्फिनिटी, वो बाय डिफॉल्ट ट्रेवर्स होती हुई डिक्रीज की के थ्रू रूट लिस्ट में आ जाएगी, और फिर रूट लिस्ट में आ जाएगी तो वहां पे एक्सट्रैक्ट मिन कॉल कर देंगे, सिंपली हम उसे डिलीट कर देंगे। तो ये 4 ऑपरेशन हम यहां पे पढ़ेंगे। बेसिकली 7 ऑपरेशन हुए बाइनोमियल हीप में। पहला एम्प्टी बाइनोमियल हीप बनाना, दूसरा ऑपरेशन मिनिमम की को फाइंड करना, तीसरा यूनियन करना, चौथा इंसर्ट करना, पांचवा मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करना, छठा किसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देना, और सातवां डिलीट करना कोई भी नोड बाइनोमियल हीप से। इन सबके हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनोमियल हीप। फॉर इंसर्टिंग अ नोड x, create a new binomial heap h dash and set head h dash pointing towards the new node x। अब ध्यान देना यहां पे, बाइनरी हीप में मैंने क्या कहा, नो नोड्स हैं किसी भी हीप में, कोई नोड इंसर्ट करनी है 10वीं पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो गई। अगला काम हमारा क्या होता है कि भाई मैक्स हीप है तो उसकी प्रॉपर्टीज को वो वायलेट करे, सॉरी फॉलो करे, तो हमें उस पर काम करना है। लेकिन यहां क्या है, हम अगर जैसे ही कोई भी नोड इंसर्ट कर देंगे ऐसे ही तो हमारी 2 की पावर k नोड्स वाली प्रॉपर्टी वायलेट होगी। तो सिंपली हमें क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई नोड इंसर्ट करें उसका एक नया हीप h डैश बना ले, उसका हेड h डैश उसे पॉइंट कर रहा हो, एग्रीड। और जो पुराना हीप है h, उस हीप h और h डैश का यूनियन परफॉर्म कर ले तो बाय डिफॉल्ट नोड इंसर्ट हो गई, एग्रीड है। सो वी कैन इजिली परफॉर्म यूनियन ऑफ न्यू हीप h डैश विद द एग्जिस्टिंग हीप h। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, नई हीप क्रिएट करने में क्या लगा, कांस्टेंट टाइम, दैट इज मेमोरी एलोकेशन, और यूनियन दो हीप का परफॉर्म करने में क्या लगेगा, log n। तो वी कैन सिंपली से दैट द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग अ नोड इन अ हीप विल टेक log n टाइम। अब हम इसकी देखते हैं एल्गोरिथम के साथ साथ एग्जांपल भी समझेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, बाइनोमियल हीप इंसर्ट h, x। अब x यहां पे क्या है, जिस नोड को मैं इंसर्ट कर रहा हूं उसे मैं x कह रहा हूं। सो दिस इज हेड h, दिस इज h डैश, एग्रीड। अब मेरे पास एक हीप h है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और एक नोड जो इंसर्ट कर रहा हूं ये मेरे पास h डैश हीप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन ऑफ h डैश, दैट इज h डैश मेक बाइनोमियल हीप, दैट इज मेमोरी एलोकेशन, दैट इज बिग O ऑफ 1 टाइम, दैट इज कांस्टेंट टाइम। अब जब भी मैं कोई नोड इंसर्ट कर रहा हूं, अब एक चीज देखें, एक सिंगल नोड का देखें तो क्या क्या फील्ड्स होंगे, पेरेंट निल, चाइल्ड भी निल, और उसका सिबलिंग भी निल। तो अगर देखें एक सिंगल नोड का ना तो पेरेंट है, ना चाइल्ड है, ना सिबलिंग है, एग्रीड। पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग तीनों निल हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट फील्ड क्या था, डिग्री। तो जो सिंगल नोड है उसकी डिग्री क्या होगी, 0, और हेड h डैश पॉइंट कर रहा होगा इस x को। तो दीज आर द 5 पैरामीटर्स और द फील्ड्स ऑफ नोड x, एग्रीड। तो फर्स्ट इज व्हाट, पेरेंट निल, चाइल्ड निल, सिबलिंग निल, और उसके बाद उसकी डिग्री जो है वो 0 है, और हेड h डैश पॉइंट कर रहा है x को। अब ये सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस थे। अब मेन ऑपरेशन आता है जब मैं यूनियन परफॉर्म कर रहा हूं h और h डैश का, जिसमें मुझे लगेगा log n टाइम, और जिसके थ्रू मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इंसर्ट करने में log n टाइम लग रहा है। अब यूनियन कैसे परफॉर्म हुआ इसका देख लेते हैं। ये h है, ये h डैश है, तो सिंपली इसको मैंने कैसे लिखा, ये 9, 1, और यहां पे आ गया 3, 4, 5 एंड 12। अब जैसे ये हुआ, ये x है, h इसे पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट ऑफ x है, ये सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x है। अब यहां पे मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया कि मेरी नेक्स्ट ऑफ x और x की डिग्री सेम है, लेकिन सिबलिंग की डिग्री सेम नहीं है, तो केस 3 या केस 4 इस पे अप्लाई होगा। अब मैं क्या देखूंगा, x की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है,
x की वैल्यू नेक्स्ट ऑफ x की वैल्यू से बड़ी है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा केस 4, और केस 4 को अप्लाई करते ही मुझे क्या आउटपुट मिल रहा होगा, जो x वाली नोड है वो मेरी 1 वाली जो नेक्स्ट ऑफ x है उसका चाइल्ड बन चुकी होगी। मतलब आउटपुट देखें तो 1 के नीचे 9 और इधर सिंपली 3 के 4 और 5 एंड 12। एग्रीड? तो सिंपली मैंने इस तरह से इसको केस 4 के थ्रू मर्ज ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म करा, और मुझे क्या लगा, लॉग एन टाइम, और यूनियन के इस केस में केस नंबर 4 के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। दिस इज बेसिकली इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनोमियल हीप। एग्रीड? सो इंसर्ट कैसे करते हैं, एक नया हीप बनाते हैं, पुराने हीप एच में उसका यूनियन परफॉर्म करते हैं बस। और जब नया हीप बनाते हैं, एक सिंगल नोड है तो उसका पेरेंट, उसका चाइल्ड, उसका सिबलिंग, उसकी डिग्री, ये सब 0 होंगी, और हेड एच डैश पॉइंट कर रहा होगा एक्स को, और इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n। ये था इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनोमियल हीप। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम नोड इन अ बाइनोमियल हीप। एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड इन अ बाइनोमियल हीप। अब इसको अगर समझें, मिनिमम की नोड को एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, मतलब अगर देखें तो मैंने कोई हीप बनाई, ये की वैल्यूज मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, अगर ये नोड कुछ हीप बनाई और मान लो यहां पे 9 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है। एग्रीड? इनके चाइल्ड्स की वैल्यू ज्यादा ही होगी, बट ऑब्वियस है मिन हीप लेके चल रहे हैं। तो अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड। तो मुझे ये तो पता है कि मिनिमम की आइडेंटिफाई कैसे होगी, भाई मिनिमम की कहां होगी, रूट लिस्ट में। तो रूट लिस्ट कहां है, सिंपली मैं रूट लिस्ट को ट्रेवर्स करूंगा, मुझे मिनिमम की यहां पे मिल जाएगी। अब एक बात बताएं, मिनिमम की नोड को ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगेगा, log n। तो log n टाइम लग रहा होगा मुझे किसमें, मिनिमम की को ढूंढने के लिए। तो पहला स्टेप देखें, फाइंड द रूट x विद अ मिनिमम की इन द रूट लिस्ट ऑफ h एंड रिमूव x फ्रॉम द रूट लिस्ट ऑफ h। ये मेरा पहला स्टेप है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पहले तो मिनिमम आइडेंटिफाई करूंगा, इसमें मुझे कितना टाइम लगा होगा, log n प्लस 1। एग्रीड? अब log n टाइम लगा लिया मैंने पहले स्टेप में मिनिमम को आइडेंटिफाई करने में। एग्रीड है? अब जब मिनिमम आइडेंटिफाई हो गया तो मिनिमम को रिमूव करना है। तो मैंने जब रिमूव करना है तो मैं इस हीप को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। एक h जो मेरी पहले से ही होगी, जो कि ये नोड चल रही होंगी, यहां 9 और ये 3, और जब ये मिनिमम मेरा यहां से एक्सट्रैक्ट होगा तो इसके एक्सट्रैक्ट होने पे जो इस हीप में वॉयलेशन आएगा वो क्या है। तो जब ये एक्सट्रैक्ट होगा, यहां से रिमूव होगा, तो मेरे पास इस 4 नोड वाले बाइनोमियल ट्री में कितनी नोड रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, वॉयलेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि वॉयलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टीज इस तरह से डिफाइंड है। तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो एक नई हीप h डैश बनाऊंगा, एक नई हीप बनाऊंगा h डैश, एम्प्टी हीप, और उस h डैश हीप में मैं स्टोर कराऊंगा क्या, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ x चिल्ड्रन एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिजल्टिंग लिस्ट। मतलब सिंपल इतना सा कि जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं वो एक लेवल ऊपर आएंगे और फिर उन्हें रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देना है तो मतलब ये वाली नोड यहां पे और ये वाली नोड यहां पे आ जाएगी। एग्रीड? मतलब ये यहां पहुंचेगा और ये वाला पार्ट यहां पे। एग्रीड है? तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले स्टेप में मिनिमम आइडेंटिफाई, उसमें मुझे log n टाइम लगा। दूसरे स्टेप में जब मैं मिनिमम को आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं तो 2 की पावर k वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट ना हो, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक नई हीप बनाऊंगा, नई हीप h डैश बनाऊंगा, उसके अंदर स्टोर करूंगा क्या, जिस नोड को एक्सट्रैक्ट करा उसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में। उसके चिल्ड्रंस को जब रिवर्स ऑर्डर में मैं स्टोर कराऊंगा नई हीप h डैश में, मतलब ऐसे, और h मेरे पास पहले से था। फिर h के अंदर क्या हो रहा होगा, बाइनोमियल हीप यूनियन ऑफ व्हाट, h एंड h डैश। तो सिंपली क्या होगा, ये नोड यहां पे है, ये चीज क्या हो जाएगी, h के अंदर ये नोड हो गई, एक वहां से आएगी ये और ये वैल्यूज मुझे मिल रहे होंगे।
जब ये वैल्यूज मिल रहे होंगे, यहां 9 है, यहां 3 है, ये कुछ वैल्यूज होंगे। अब इसके अंदर मुझे बाइनोमियल हीप यूनियन परफॉर्म करके लॉग एन टाइम लग रहा होगा। एग्रीड है? तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड। तो पहला क्या, मिनिमम की को आइडेंटिफाई करो, रूट लिस्ट में कहां है, उसमें लगा लॉग एन टाइम। दूसरे स्टेप में मिनिमम की जब आइडेंटिफाई कर लिए तो अब मुझे इसको रिमूव करना है। जब मैं रिमूव करूंगा तो उसके चिल्ड्रंस को कहीं स्टोर कराऊंगा, कहीं स्टोर कराऊंगा तो एक नई हीप एच डैश बनाऊंगा जिसमें मुझे कांस्टेंट रनिंग टाइम लगेगा। तीसरा स्टेप क्या है, जब मैंने उसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में मैं स्टोर कराऊंगा हीप एच डैश में, और हेड एच डैश जो है वो पॉइंट कर रहा होगा उसकी रिजल्टिंग लिस्ट को। एग्रीड? फोर्थ स्टेप, फिर मैं यूनियन परफॉर्म कर रहा हूं एच और एच डैश का, तो मेरे साथ फोर्थ स्टेप में भी क्या लगा, लॉग एन टाइम। तो सिंपली मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम ढूंढने में लॉग एन और यूनियन परफॉर्म करने में लॉग एन। तो बट ऑब्वियस लॉग एन प्लस लॉग एन इज ट्वाइस ऑफ लॉग एन, दैट इज रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो log n. This is extracting the minimum key node. Now, with the help of an example, I will discuss this. This is head h pointing to this. Now, what is the minimum? Minimum is this. तो पहले मैंने log n टाइम लगा लिया मिनिमम ढूंढने के लिए, और जब मिनिमम ढूंढ लिया तो मैंने इसके बाद क्या करा, ये वाला पार्ट जो मेरा यहां पे दिख रहा है, जैसे ही मिनिमम मुझे मिला, मिनिमम इज व्हाट, 1। मिनिमम जब मेरा एक्सट्रैक्ट होगा तो मैंने इसको क्या नाम है, ये H1 और H2 को फ्री कर दिया ऑब्जेक्ट्स को। जब ये H1 यहां से 1 मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, 1 एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद ये 10 बचा, 10 बचा तो 9 की मैपिंग इससे हो गई, और इसका जो चिल्ड्रन है उसे ये H कोई हीप है, ये H डैश कोई हीप है, इसमें मैंने H हो गया, ये H डैश हो गया। अब मैं H और H डैश का यूनियन परफॉर्म करूंगा, और H और H डैश का यूनियन परफॉर्म करते ही मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 9, 9 का चाइल्ड 10, और इसके आगे ये B2 ट्री एज इट इज दिख रहा होगा, 3, 4, 5 एंड 12। एग्रीड? सो इसमें मैंने केस 3, 4 लगा के मैं इसको इजिली सॉल्व कर रहा हूं। दिस वॉज द एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम की नोड। बेसिकली हुआ क्या, मिनिमम ढूंढा लॉग एन टाइम में, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स को फ्री कर लिया, फिर 1 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पे सारे ऑब्जेक्ट्स फ्री हो गए, कोई किसी की किसी से लिंकिंग नहीं है। तो अब क्या होगा, 9 की 3 से लिंकिंग तो रहेगी, और इस 10 को नई हीप में स्टोर करा लिया और फिर यूनियन परफॉर्म कर लिया। एग्रीड? तो इस करने के क्या टाइम लग रहा है, मिनिमम ढूंढने में लॉग एन और फिर उसका यूनियन परफॉर्म करने में लॉग एन, तो रनिंग टाइम इज लॉग एन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिक्रीजिंग द की वैल्यू इन अ बाइनोमियल हीप। अब की वैल्यू डिक्रीज करना मतलब कोई ऑलरेडी एक बाइनोमियल हीप एग्जिस्ट है, उसमें किसी भी नोड की एक वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। अब वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसके पेरेंट नोड के साथ उसकी मिन हीप वाली प्रॉपर्टी का वायलेशन आएगा, और वो तब तक करते रहें जब वो वायलेशन आना बंद हो जाए। दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग द की वैल्यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस, द करंट की वैल्यू is replaced with a new key value. Agreed? To maintain the min heap property, new key is then compared to the key of the parent. But obvious है, आपने किसी भी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो बट ऑब्वियस उसका पेरेंट उसके चाइल्ड से बड़ा हो सकता है, मुझे तो पेरेंट को चाइल्ड से छोटा रखना है। अब if the parent's key is greater than the new key, then the data will be exchanged. This process continues until the new key is lesser than the parent's key or the new key reaches the root after the exchange is made. तो इसके एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगा वो लॉग एन। अब सोचिए कैसे, मान लो मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये जो वायलेशन था ये कुछ इस तरह का ट्री जा रहा था, इसकी की वैल्यू मैंने डिक्रीज करी, ये अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, ये अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, ये अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, और ये कोई बाइनोमियल ट्री था B4। तो एक तरह से उसने क्या करा, पूरे B4 ट्री की सारी ब्रांचेस को कवर करा, सारी ब्रांचेस को कवर करा। तो B4 की बाइनोमियल ट्री B4 की हाइट जो है वो 4 है, डेप्थ भी 4 है, डिग्री भी 4 है। तो बाइनोमियल ट्री BK का क्या बोला गया था, हाइट कितनी होगी, लॉग एन। तो उसने एक तरह से लॉग एन कंपेरिजन कर लिए, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आ रही होगी। अब इसकी एल्गोरिथम देखते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल। अब डिक्रीजिंग द की वैल्यू इन अ बाइनोमियल हीप की एल्गोरिथम। सबसे पहले बाइनोमियल हीप डिक्रीज की h, x, k। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x एंड k हियर? x यहां पे वो नोड है जिसकी की हम डिक्रीज कर रहे हैं। x इज द नोड हुज की इज टू बी डिक्रीज।
whose key is to be decreased. एंड नेक्स्ट k क्या है यहां पे? k इज द की वैल्यू जिससे डिक्रीज करा जा रहा है। अब सोचें k अगर की वैल्यू है तो सिंपल क्या हो सकता है, अगर मैंने k ग्रेटर देन की ऑफ x रखा है कि भाई उस नोड की x की कुछ की थी उससे बड़ी रखी है, तो बट ऑब्वियस है मिनी प्रॉपर्टी तो मेंटेन रहेगी, क्योंकि पेरेंट छोटे थे चाइल्ड बड़े थे और आपने इसी की को और बढ़ा दिया, तो बट ऑब्वियस है इफ k ग्रेटर देन की ऑफ x देन एरर न्यू की इज ग्रेटर देन द करंट की, एल्स की ऑफ x में आ जाएगा k। एग्रीड? एल्स हमारा क्या आ गया? की ऑफ x में k। अब जो मेरा x है उसको आप y बना दो, असाइन कर दो, और जो y का पेरेंट है उसे आप z बोल दो। एग्रीड है? जो मेरा x है उसको y असाइन कर दो और जो y का पेरेंट है उसे आप z बना दो। अब क्या होगा? y और z के कंपैरिजन होंगे, मतलब चाइल्ड और पेरेंट का कंपैरिजन होगा। कब तक होगा? जब तक z निल ना हो जाए। तो सिंपली while z नॉट इक्वल टू निल, एग्रीड, एंड की ऑफ y जो है वो की ऑफ z से छोटी है, तो एक्सचेंज कर दो की ऑफ y को की ऑफ z से। एग्रीड? एंड वाई जेड्स आर द सैटेलाइट फील्ड, एक्सचेंज देम टू, मतलब उनके एड्रेस को भी चेंज करें। सिंपली आप समझे, x को आपने y बनाया, y के पेरेंट को आपने z बनाया। अब y और z में कंपैरिजन है, मतलब चाइल्ड और पेरेंट में, और कब तक है? जब तक z निल ना हो जाए। और की ऑफ y और की ऑफ z लेस देन, की ऑफ y लेस देन की ऑफ z है, तो एक्सचेंज कर दो y और की z की को। अब जब ऐसा हो जाए एक इटरेशन के बाद, तो जो z था उसे y बना दो और फिर से पेरेंट ऑफ y को z बना दो, जिससे कि इस लूप में बार बार हम घूमते रहें जब तक मेरी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो कि मिन ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है उसमें। अब एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। तो बेसिकली आप एक चीज देख रहे होगे, ये वाला लूप जो चल रहा है, ये इसमें हो क्या रहा है? एक तरह से y का z से, फिर आपने इसको y बनाया, फिर z इसके ऊपर आया, फिर y इसको बनाया, फिर z इसके ऊपर बनाया, तो y का z से कंपैरिजन चलता चल रहा है बॉटम से, लीफ नोड से रूट लिस्ट तक। तो एक तरह से जो उसकी हाइट रही होगी उस हाइट में सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया ना आपने। जब सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया तो लॉग एन टाइम लगेगा इसमें। एग्रीड? तो अब एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं, हमने इस 20 की वैल्यू को 20 रेड्यूस टू 7। एग्रीड? अब 20 की वैल्यू को हमने 7 से रेड्यूस करा। एग्रीड है? अब जब 7 से रेड्यूस करा तो ये मेरा y, ये z। अब जब ये अपडेट हो गया तो ये क्या हो गया? ये y, ये z। एग्रीड? फिर अगली बार क्या? की ऑफ y, अब क्या देख रहे हैं हम? z नॉट इक्वल टू निल है, की ऑफ y लेस देन की ऑफ z है। फिर अपडेट हो गया, ये y, ये z, और फिर देखा z नॉट निल है, लेकिन की ऑफ y जो है वो की ऑफ z से क्या है? बड़ी है, तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो गई। अदरवाइज अगर यहां पे भी मान लो ये 10, ये 8 होता, तो 8 होता तो ये फिर से 7 ऊपर पहुंच जाता, फिर अगले केस में जाके z निल हो जाता। समझ पा रहे हैं? मान लो फॉर टाइम बीइंग इफ वी इग्नोर एवरीथिंग, दिस इज 8, देन व्हाट विल हैपन? दिस 8 विल कम हियर, दिस 7 विल गो हियर, एंड नाउ दिस विल बी y एंड द z विल बी निल देन। सो कैसे हम यहां पे देखें कि क्या हो रहा है? z नॉट इक्वल टू निल कब होगा? जब कंपेयर होते 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 हमारा z क्या नाम है? रूट लिस्ट से रहे ना। और की ऑफ y लेस देन की ऑफ z, मतलब जब हमारा की y की z से बड़ी होने लगे। ये दो कंडीशंस पे हमें काम करना है। एग्रीड? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। आई होप यू ऑल हैव gone through and you all will understand this example with the help of decrease key operation. Now I will discuss about the deleting a node in a binomial heap. अब जैसे कि मेरा बाइनरी हीप होता है, बाइनरी हीप में सिंपल में क्या करूंगा? ये है, और मान लो मुझे इस नोड को डिलीट करना है, इस नोड को, आई सिंपली डिलीट दिस नोड। सिर्फ क्या होगा? इस नोड को डिलीट करा, मान लो इस नोड को डिलीट करना था तो सिंपली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मैक्स हीप है तो सबसे छोटी नोड ये होगी, और अगर मिन हीप है तो सबसे बड़ी नोड ये होगी।
लेकिन अगर कोई मुझे बीच में से नोड डिलीट करनी है तो मैं सिंपल स्वैप करूंगा। स्वैप करने के बाद उसका मैक्स हीप और मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करूंगा। लेकिन यहां बाइनोमियल हीप में क्या होगा, मेरे पास कोई बाइनोमियल हीप एग्जिस्ट करता है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऐसे ही डिलीट कर दूंगा तो उसकी 2 की पावर k नोड वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने इंसर्शन में भी देखा, उसको मेंटेन करने के लिए, या एक्सट्रैक्ट मिन में भी देखा, एक्सट्रैक्ट मिन में भी क्या, मिनिमम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके चिल्ड्रन को रिवर्स कर देते हैं, फिर यूनियन परफॉर्म कर देते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले डिलीट की ऑपरेशन में पहला स्टेप करेंगे डिक्रीज की। और डिक्रीज की का मतलब क्या है, कुछ भी नोड्स हैं, मान लो एक किसी हीप में इस तरह से कोई हीप बना हुआ है, इस तरह से कोई हीप हमारे पास अवेलेबल है, और मान लो मुझे इस नोड को डिलीट करना है। अब अगर इस नोड को मुझे डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली तो डिलीट करूंगा नहीं, 2 की पावर k नोड वायलेट हो जाएगी। मैं इसको सबसे छोटी वैल्यू दे दूंगा। जैसे ही इसको सबसे छोटी वैल्यू दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये डिक्रीज की कॉल करते हुए रूट लिस्ट पे पहुंचेगा और फिर रूट लिस्ट में सबसे छोटा होगा। एग्रीड है भाई, ये कुछ भी वैल्यूज हो, मैंने जिस भी नोड को डिलीट करना है उसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू असाइन कर दो, दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो मैंने पहला स्टेप क्या लिखा, बाइनोमियल हीप डिक्रीज की h, x, माइनस इंफिनिटी, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी। अब स्मॉलेस्ट असाइन कर दी तो बाय डिफॉल्ट ट्रैवर्स होते हुए रूट तक पहुंच गई। अब रूट तक पहुंच गई तो मेरा अगला काम क्या है, रूट तक पहुंच गई तो रूट लिस्ट में मिनिमम ढूंढा, मिनिमम ये मिली, मिनिमम ढूंढने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करा, इसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कराया नई हीप में, और दोनों हीप का यूनियन परफॉर्म कर दिया। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन डिलीट। पहला क्या, मैं डिक्रीज की करूंगा कॉल। डिक्रीज की कैसे, किसी भी नोड को डिलीट करने वाला हूं तो उसकी की वैल्यू मैंने माइनस इंफिनिटी कर दी, घूमते फिरते वो की वैल्यू जो है रूट लिस्ट में आएगी। अगला स्टेप क्या है, इसको करने में मुझे लॉग एन टाइम लगा। अगला स्टेप क्या है, जब वो रूट लिस्ट में आ गई तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम एक्सट्रैक्ट मिनिमम कॉल करूंगा। एक्सट्रैक्ट मिनिमम में क्या होगा, पहले रूट लिस्ट में मिनिमम ढूंढा, मिल गई माइनस इंफिनिटी, उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट किया, उसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में नई हीप में स्टोर कराया, और फिर h और h डैश का परफॉर्म कराया यूनियन। तो इस ऑपरेशन में भी मुझे क्या लगेगा, लॉग एन टाइम। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने में मुझे लॉग एन टाइम लगेगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, हेड विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है, हेड इज पॉइंटिंग टू दिस। तो अगर मैं यहां पे देखूं सिंपल, तो हेड अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि किसी को नोड को डिलीट करना है, इस रेड नोड को डिलीट करना है। 12 इज टू बी डिलीटेड, ठीक है। अब 12 को डिलीट करने के लिए मैंने क्या करा, माइनस इंफिनिटी इसको असाइन कर दिया। माइनस इंफिनिटी असाइन करा तो ये माइनस इंफिनिटी दिया, ये रूट लिस्ट यहां से यहां, यहां से यहां, ये यहां तक मूव कर गया। पहले यहां आया डिक्रीज की में, फिर ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। अब यहां तक ये यहां से यहां कंपैरिजन, फिर यहां से यहां कंपैरिजन, और ये चीज मेरी यहां रिटर्न हुई। अब जब वो माइनस इंफिनिटी वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया दो हीप अलग अलग। ये हीप हो गई h और ये हीप हो गई h डैश। अब ये h है, ये यहां से हटेगा, इसके चिल्ड्रंस रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होंगे, जो कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। दिस इज हीप h, दिस इज हीप h डैश। ये एक लेवल ऊपर उठा, इसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करा लिया, 8, 5, 2 एंड दिस, और इसके बाद इन दोनों पे परफॉर्म करा क्या, यूनियन ऑपरेशन। और यूनियन परफॉर्म करेंगे तो इसका रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n आएगी, और सिंपली मैंने इस तरह से नोड को डिलीट करा। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ बाइनोमियल हीप एंड बाइनरी हीप ऑपरेशंस। सबसे पहले मेक हीप। अब बाइनोमियल हीप है चाहे बाइनरी हीप है, मेमोरी एलोकेशन बेसिकली टेक्स कांस्टेंट रनिंग टाइम। अब इंसर्ट करना, बाइनोमियल हीप में जब भी कोई नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो नई हीप बनाते हैं और h डैश का यूनियन करते हैं, दैट इज लॉग एन टाइम। और बाइनरी हीप में क्या करते हैं, सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसके मैक्स हीप और मिन हीप मेंटेन करते हैं, तो वो अपने वाले लेवल्स में कंपैरिजन होता है, जिस वजह से लॉग एन टाइम। मिनिमम को आइडेंटिफाई करने में, रूट लिस्ट में ढूंढने में log n + 1 बाइनोमियल रूट्स को ढूंढना पड़ेगा, तो log n टाइम। यहां मिनिमम को आइडेंटिफाई करना कांस्टेंट टाइम, एक्सट्रैक्ट करना मिनिमम को, उसमें भी log n टाइम, यहां मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करने में भी log n टाइम।
यूनियन में यहां n टाइम लगता है, यहां log n. दिस इज द इंप्रूवमेंट इन द बाइनोमियल हीप केस. एंड फॉर डिक्रीज की एंड डिलीट की, both operations, that is both in binomial heap and binary heap, the decrease key and delete key operation will take log n time. This is basically the comparison chart of binomial heap versus binary heap among all the priority queue operations. Hope you all have understand the lecture of binomial heap, its properties of binomial heap, binomial tree, the binomial tree's properties, as well as all the operations of the binomial heap. That is, first operation was creating a new binomial heap, second was finding the minimum key, third was the union, fourth was the inserting a node, fifth was extracting the minimum key, sixth was decreasing the key, and seventh was the delete key. Thank you.